Good morning to you all. I welcome you to today's class on 28th of July. As you know, yesterday we started the new lesson, lesson number 4. And in the very beginning of the lesson, I told you about the use of elder eldest and older oldest. And I asked you to find out through Google also. I also explained, and I asked you people to find out some more examples regarding the use of elder eldest and older oldest. Have you found something? Did you see? Did you Google it? As I asked you, how many of you Googled it? How many of you just see Vedant, one hand? 2, Ashi, 3, Aparna, Vidhi Rakhani, Himani Sharma. Okay, Bhavesh Yadav. Okay, good. So many of you have seen, and now I think you might have come to know that what is the difference between the use of elder eldest and older oldest. Already I told you that it depends on the family members. Elder and eldest is always used for the same family members, for the siblings, for the people of same family. But older and oldest is used with other people. When we are comparing other people, then we use older and oldest. Suppose you are comparing your friend. My friend is elder to me or older to me, Prathamesh. Elder to me. Older. First Older you to were me. elder, then you looked at your mother, and then you corrected yourself. This is not quite true, Prathamesh. This is not correct. Once I told you, I explained yesterday also. Today also I told you to Google also. But if you do like this, it is not good. So for same family people, it is elder and eldest. For other people, older and oldest. So my friend is older to me. OLDER, older. Because your friend is not your family. Okay? He is not in your family. He is from another family. Understood, everyone? I just read out the scene 1 of the lesson 4, and in that scene 1 we came to know about the conversation between Bhaiya and Munna. Who is Bhaiya? Bhaiya is the big brother, the elder brother. है ना? My elder brother. So the elder brother is Bhaiya and Munna is the younger brother. छोटा भाई जो है वो मुन्ना है. So Bhaiya always reads something. He reads the poems, he writes it 20 times, the words he writes 20 times. He just read and he do the writing. But Munna loves to play in the field, play kites, shoot marbles, and the sound of kabaddi, hututu sounds like that. Okay? सबके कैमरा में क्या प्रॉब्लम हो गया? कैमरा कहाँ चले गए सबके? Why I am unable to see? मुझे केवल स्क्रीन पे 3 बच्चे दिख रहे हैं अभी. रिद्धि, प्रथमेश एंड भावेश. अब आस्था भी दिखी. बाकी बच्चे कैमरा ऑन करिए अपना सब लोग. मेरा कैमरा ऑन है. मैम मेरा भी ऑन है. यस मैम. मेरा कैमरा ऑन है. हाँ, चलिए. Now today I am starting the scene 2. Today I am starting reading the scene 2. The final exams are over and the results are out. अब क्या है? फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं और रिजल्ट निकल चुका है. Now भैया, alas, I have failed once again. भैया बोल रहे हैं, अरे मैं फिर से फेल हो गया. भैया जो ज्यादा पढ़ते थे, हर वक्त पढ़ते रहते थे, वो फिर से फेल हो गए. मुन्ना, ओ बट भैया, आई हैव पास एंड टॉप्ड माय क्लास. मैं तो पास भी हो गया और मैंने अपनी क्लास में टॉप भी किया है. यस. ओके. नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. अब आप में और मेरे में केवल 2 years का डिफरेंस रहा है. आप में और मेरे में केवल 2 years का डिफरेंस है. पहले कितने years का डिफरेंस था दोनों में? पांडे ब्रदर्स. मैम 3 years का. यस.
पहले 3 years का डिफरेंस था, तो डिफरेंस था, अब 2 का क्यों रह गया स्तव्य? मैम क्योंकि वो एक क्लास आगे बढ़ गया, हाँ क्योंकि मैम वो एक क्लास आगे बढ़ गया। यस, क्योंकि मुन्ना एक क्लास आगे बढ़ गया और भैया उसी क्लास में फेल हो गए, तो इसलिए अब दोनों के बीच में डिफरेंस खाली 2 साल का, 2 years 2 क्लासेस का ही डिफरेंस रह गया। बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड, तुम्हें घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राउड का मतलब घमंड करना, ओ देखो मैं तो बिना पढ़े पास हो गया, है ना। यू हैव पास ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने अभी एक ही क्लास पास करी है और तुम्हें लग रहा है कि मैं स्टूपिड हूं और तुम स्मार्ट हो, कि मैं बेवकूफ हूं और तुम समझदार हो। Once in a while, in a गिल्ली डंडा game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean। कई बार गिल्ली डंडा के खेल में, गिल्ली डंडा देखा है आपने कैसे खेलते हैं? एक गिल्ली होती है लकड़ी की और एक डंडा होता है, उस डंडे से ऐसे मार के उस गिल्ली को मारना होता है। अभी आजकल के बच्चे नहीं खेलते। जब मैं छोटी थी तब हम लोग ये गेम खेलते थे। वैसे बॉयज ज्यादा खेलते थे, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ मैं भी खेल लेती थी, है ना। तो ऐसी गिल्ली बनाते, छिल के पूरी उसको शेप बनाते हैं। आई शो यू। मैं तो अभी भी खेलता हूँ। ऐसी होती है गिल्ली, समथिंग लाइक दिस, ऐसी गिल्ली होती है और फिर इसका होता है डंडा इसके पास, और इस डंडे से आप गिल्ली को मारना होगा। मेरे भाई के साथ खेलती थी गिल्ली डंडा। ठीक है, ओके हिमानी। तो गिल्ली डंडा जो तो गेम होता है उसमें मैंने आपको बताया कि लकड़ी की बनी हुई गिल्ली होती है, लकड़ी का ही डंडा होता है, और ऐसे डंडे से, जैसे आप बैट बॉल में, क्रिकेट में बैट से बॉल को मारते हो, ऐसे सेम वे इसको गिल्ली को मारना होता था। लेकिन उसमें बॉलिंग जैसा नहीं होता है, ऐसे नीचे से उठा के किसकी गिल्ली कितना दूर गई, इस तरह से। तो गिल्ली डंडा के गेम में भैया उसको बता रहे हैं कि कभी कभी किसी का लक अच्छा हो सकता है, कोई किस्मती हो सकता है कि भाई आपने ढंग से हिट नहीं किया फिर भी आपका निशाना अच्छा लग गया, यू हैव मास्टर द गेम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस गेम के मास्टर हो गए, है ना। लक ने तुम्हारा फेवर कर दिया। कभी कभी होता है ना, हम भी सोचते हैं अरे मैंने तो इतना अच्छा नहीं किया था, फिर मेरा इतना अच्छा कैसे आ गया, है ना। होता है ना कभी कभी। दक्ष गहलोत तो अपना माइक ऑफ करो। मैम मेरा माइक ऑन ही है। दक्ष गहलोत अपना माइक ऑफ करो। प्रज्वल अपना माइक ऑफ करो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आपको जीवन में अगर सफल होना है, आपने सुना होगा, आप लोग बोर भी हो जाते होंगे, बोले मम्मी पापा टीचर बड़े सब देखो जब भाषण देते रहते हैं। लेकिन मैं भी जब बड़ी हुई ना, अब मुझे समझ में आया कि बड़े सही बोलते थे। छोटे होते तब अपने को लगता है दिन भर ये लोग लेक्चर देते रहते हैं, लेकिन वो बड़े सही बोलते हैं। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, when you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। अब भैया उसको समझा रहे हैं कि जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे और तुम्हें एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई किसको बोलते हैं। अभी तो तुम्हारी पढ़ाई काफी इजी है। इन ज्योमेट्री, इफ वन राइट एसीबी इंस्टेड ऑफ एबीसी, द आंसर इज मार्क रॉन्ग। आपको पता है ना, जैसे ट्राइंगल होता है आपका, अब ट्राइंगल को आप एसीबी लिख दो, है ना, लेकिन करेक्ट आंसर है एबीसी, तो आपका जो एसीबी है वो गलत हो जाएगा और एबीसी करेक्ट। खाली एक बी को इधर उधर करने से आंसर पूरा गलत हो सकता है। तो वो भैया उसको समझा रहे हैं कि ज्योमेट्री में ऐसा होता है। एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू। एग्जामिनर्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा चलो बच्चे से गलती हो गई, वो तुम्हें पूरा 0 मार्क दे देंगे। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एग्जामिनर चाहते हैं कि तुम पूरा वर्ड टू वर्ड सब कुछ अच्छे से लर्न करो, अच्छे से याद करो। मैं भी इंप्रेस होती हूँ जब कोई बच्चा अच्छा लिखता है एग्जाम में, अरे वाह इसने कितना अच्छा लिखा है। कई बच्चों को मैंने गुड भी लिखा है, एक्सीलेंट भी लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा लिखा। तो जो अच्छा करता है उसको टीचर्स, पड़ोसी, मम्मी पापा, घर के लोग, रिश्तेदार सब पसंद करते हैं। ठीक है। हाँ, ये जतिन गिल्ली डंडा दिखा रहा है, सब लोग देखेंगे। जतिन सीधा करके दिखा। ये देखो जतिन ने गिल्ली डंडा लाया है, मैंने आपको फोटो दिखाया, जतिन ने ओरिजिनल गिल्ली डंडा दिखा रहा है। सब लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ, ये जतिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जतिन 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 आप लोग
मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जतिन इसका फोटो खींच के मुझे भेज देना बेटा, नीचे रख के। चलो अब रखो पीछे। यस मैम। थैंक यू जतिन। ओके तो दीदी ने हमें गिल्ली डंडा भी दिखा दिया, और मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से ज्योमेट्री में अगर एक भी लेटर रॉन्ग हो जाएगा तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और जो टीचर्स है, जो बड़े हैं, वो ये चाहते हैं कि आप वर्ड टू वर्ड पूरा आंसर याद करें। जैसे भी अपने इंग्लिश में अगर आपने एक भी स्पेलिंग गलत कर दी तो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपने ग्रामेटिकल एरर कर दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कटेंगे। यानी हर चीज पे गलती, तो गलती की गुंजाइश तो करनी ही नहीं है। हमें हर चीज को इतना थरली, इतना अच्छे से स्टडी करना है, मेहनत करनी है, ताकि हम लोग बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करके अपने आप को इतना परफेक्ट बना ले कि हमसे फिर कोई गलती हो ही ना, हमसे फिर कोई गलती हो ही ना। ठीक है मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज स्कैरी, आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ। मैं अभी थोड़ी 9th में जा रहा हूँ, जब 9th में जाएंगे जब देखेंगे। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। आज का लेकिन मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। मैं अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करूंगा ताकि मुझे क्लास में टीचर के थ्रू पनिशमेंट ना मिले। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. आज ही हमें पंक्चुअलिटी के ऊपर 4 पेजेस का ऐसे लिखने को मिला। ऐसे राइटिंग होता है ना, निबंध लेखन, हिंदी में उसको बोलते हैं निबंध लेखन। और किस पे मिला? पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी की स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं। पंक्चुअलिटी, है ना? एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी इन शॉर्ट? इट्स ऑल सो मिक्स्ड अप। उनसे कहा गया कि 4 पेजेस का शॉर्ट ऐसे लिखो। पहली बात तो भाई वो 4 पेजेस का है तो शॉर्ट कैसे हो सकता है? दूसरा पंक्चुअलिटी। अब पंक्चुअलिटी का मीनिंग क्या होता है? हु इज गोइंग टू टेल द मीनिंग ऑफ पंक्चुअलिटी? यस भावेश यादव। निबंध लेखन। पंक्चुअलिटी का मतलब निबंध लेखन। शाबाश, गई भैंस पानी में। What is the meaning of punctuality? Who is going to tell me? Yes, Anshika. Yes, Anshika, Vashisht. अंशिका, क्या डिस्कशन चल रहा है? अंशिका, अंशिका वशिष्ठ, अंशिका, क्या आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? अंशिका, ये लो गायब भी हो गए। हाँ निकिता, आप बताना चाहती, बताइए निकिता। मैम टाइम से करना। मैम पंक्चुअलिटी का मीनिंग टाइम से करना। ओके अंशिका, माइक ऑफ। हाँ निकिता, आप बताइए। मोरल। नो, रॉन्ग। आपने मोहित का आंसर पढ़ लिया और बोल दिया मोरल। मोहित भी गलत और आप भी गलत। किसी का भी पढ़ने सुनने पे बिलीव मत करो। आशी, आशी। यस मैम, कोई भी काम को पंक्चुअली करना, जैसे टाइम पे हर एक चीज करना। ठीक है आशी, थैंक यू आशी। अंशिका का और आपका आंसर करीब करीब सही है, काफी सही आपने बोला है। पंक्चुअल का मतलब होता है, अगर कोई आपके लिए बोलता है कि आप एक पंक्चुअल स्टूडेंट हो, रत्नांजलि मैडम पंक्चुअल है, इसका मतलब रत्नांजलि मैडम हमेशा क्लास में टाइम पर आती है। पंक्चुअल वो होता है जो जिसका जहां उसकी मीटिंग हो, जहां उसकी जरूरत हो, वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, लेट ना हो, है ना? शी इज वेरी पंक्चुअल, मतलब कि वो अपना हर काम टाइम पे करती है। टाइम पे खाना, टाइम पे ऑफिस जाना, टाइम पे पढ़ाई करना, तो वेरी पंक्चुअल। अगर हमें पार्टी में हमें किसी ने 7 बजे बुलाया है, हम उनके घर 9 बजे पहुंच रहे हैं, है ना? तो ये सही नहीं है। ठीक है,
टाइम का पाबंद, क्रिस्टीना ने लिख के भेजा है टाइम का पाबंद, काफी कुछ वैसा ही, जो टाइम का पाबंद हो, जो हर चीज को टाइम से करता हो, उसको बोलते हैं पंक्चुअल, और पंक्चुअल से वर्ड बना है पंक्चुअलिटी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? समझ में आ गया पंक्चुअलिटी का मीनिंग? इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, थोड़ी डिफरेंट है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया बोल रहे हैं पंक्चुअलिटी जैसे सब्जेक्ट पे 4 पेजेस का ऐसे लिखना, और फिर कह रहे हैं शॉर्ट लिखो। अरे अरे भाई 4 पेजेस का है तो शॉर्ट क्या हुआ? लेकिन ऐसे कंफ्यूज करते हैं बड़ी क्लासेस में। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अब मुन्ना कहता है हे भगवान शुक्र है ये है ना बेल लग गई, नहीं तो भैया मुझे डांटते ही रहते हैं, डांटते ही रहते हैं, डांटते ही रहते हैं। बेल लग गई तो भैया भी चले गए और मेरे को भी अब जाना है। नेक्स्ट सीन 3। अब हम लोग पहुंच गए हैं सीन 3 पे। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। बाबा रे फिर से रिजल्ट आया, 1 साल और निकल गया और फिर से भैया फेल हो गए। ज्यादा पढ़ने वाला फेल हो गया और कम पढ़ने वाला कौन? मुन्ना पास हो गया। भैया वॉज रियली अपसेट, अब भैया बहुत दुखी हुए। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, मुन्ना भी बहुत दुखी हुआ अपने भाई को देखकर। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया उस मुन्ना के साथ इतनी सख्ती नहीं करते, थोड़े जेंटल हो गए हैं। जेंटल मतलब थोड़ा सा उसको इतना ज्यादा डांटते नहीं अब। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस, और मुन्ना इसकी वजह से और नॉटी होता जा रहा है। उसको लग रहा है वाह अब तो भैया मुझे कुछ कहते ही नहीं है, खूब मटर गश्ती करो, खूब घूमो फिरो, खूब खेलो ऐसे। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और अब मुन्ना ने पढ़ाई करना भी कम कर दिया। उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया है कि अरे मेरे तो बिना पढ़े इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मैं तो बिना पढ़े ही पास हो जाता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है ना। और ये चीज सबसे गलत है। जिस दिन आपको ये घमंड आ गया अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या मैं तो कुछ भी कर लूंगी, बस तो आपका उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू, उस दिन से आपका फेल होने की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस आगे। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, अब मुन्ना बोल रहा है ओ आई एम लकी आई कैन पास इजीली। अरे मैं तो कितना लकी हूँ, मैं तो आराम से पास हो जाता हूँ, ऐसे ऐसे पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है ये? मुन्ना। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ जाके खेल सकता हूँ बाहर, और काइट्स भी उड़ा सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे काइट्स उड़ाते हुए ना देख ले, क्योंकि अगर भैया ने मुझे देखा तो वो फिर से भाषण शुरू कर देंगे, फिर से मुझे डांटना शुरू कर देंगे। वन डे अ काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, अब एक काइट एक दिन नीचे आकाश होते ना कट जाती है, आपको पता है ना पतंग कट जाती है तो फिर नीचे आती कट के, है ना, उसका धागा कट जाता है। तो मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, अब मुन्ना ने दौड़ना शुरू किया। क्यों दौड़ना शुरू किया देशना? मुन्ना ने क्यों दौड़ना शुरू किया? ताकि वो पतंग को पकड़ ले। वेरी गुड, ताकि वो पतंग को पकड़ ले। वेरी गुड देशना। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अचानक जैसे ही वो पतंग को पकड़ने जा रहा था भैया उसके एकदम सामने आ गए। अचानक ऐसे मैं जा रही हूँ भैया मेरे सामने आ गए, ऐसे किसी तरह से मुन्ना के सामने भैया आ गए। वीरेंद्र अपना माइक ऑफ करो। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड, अब भैया ने मुन्ना का जो हाथ था वो पकड़ लिया, ऐसे अपना अपना हाथ पकड़ के दिखाओ, ऐसे कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना हैंड, मुन्ना का हाथ ऐसे पकड़ लिया, हाँ ऐसे बिल्कुल इसी तरह से पकड़ा उसका हाथ। आरंट यू अशेम्ड, उसको चिल्लाए तुम्हें शर्म नहीं आती है? आरंट यू अशेम्ड, तुम्हें शर्म नहीं आती है टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, दिन भर पतंग उड़ाते रहते हो? डोंट यू रियलाइज that now you are in the 8th class, अब तुम 8th में आ गए हो, and are not studying in the lower class, अब तुम छोटी क्लास में नहीं रहे हो, तीसरी चौथी पांचवी में नहीं हो तुम। If you think that I am just 1 class ahead of you, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास ही आगे हूं, क्योंकि अब मुन्ना 8th में और भैया 9th के 9th में रह गए अभी तक, तो मैं तुमसे सिर्फ 1 ही क्लास आगे हूं,
एंड आई कैन से एनीथिंग, और मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाऊंगा। यू आर रॉन्ग, तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं अभी भी तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं अभी भी तुम्हें डांट सकता हूं। आई एम 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। भैया कितने बड़े मुन्ना से? शो मी योर फिंगर्स। 5 साल, 5 years। अनुज के, अनुज के, अनुज के, अनुज, उसका वीडियो पॉज हो गया है। ओके, 5 years, यस। एंड आई विल ऑलवेज बी, और मैं हमेशा तुमसे इतना बड़ा ही रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, खाली पढ़ाई लिखाई करने से ही, खाली किताबें पढ़ने से ही समझ नहीं आती है। मैंने कल भी ये बात आपको बताई थी। कईयों के घर में ऐसा होता है, दादा दादी पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन क्या आप दादा दादी से ज्यादा अक्लमंद हो? नहीं, क्योंकि उनको जिंदगी का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है। यस, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है, लेकिन जिंदगी आपसे ज्यादा देखी है, तो उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है। सो अंडरस्टैंडिंग डजंट ओनली कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा की तरफ देखो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल, अपनी माँ कभी भी स्कूल नहीं गई है। देखो वही बात आ गई जो मैंने बोली, अपनी माँ कभी भी स्कूल नहीं गई है। एंड बाबा हैज ओनली पास 5th क्लास, और अपने जो बाबा हैं, जो अपने पिताजी हैं, वो केवल क्लास 5 तक पढ़े हुए हैं। वो केवल क्लास 5 तक पढ़े हुए हैं। कौन अपने माइक से बार बार छेड़छाड़ कर रहा है? एक बार और पता चला मुझे, और मैं क्लास से बाहर कर दूंगी। एक सेकंड, गिव मी 1 मोमेंट। चलिए, थैंक यू। माइक, अभी भी किसी का माइक से कोई छेड़खानी करी किसी ने? मुझे यहाँ से पता सब चल जाता है। हाँ, तो अब भैया उसको बहुत बुरा डांट रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि भाई तुम्हें पता है कि हमारी माँ कभी भी स्कूल नहीं गई है, और बाबा हमारे केवल 5वीं पास है, ओनली 5th तक ही पढ़े हैं बाबा, उनके पापा। मुन्ना, अब मुन्ना को आश्चर्य होता है। रियली? ऐसे करता है मुन्ना। रियली? एकदम उसको आश्चर्य हुआ। भैया, इज दैट ट्रू? क्या ये सच है? ऐसा सच है क्या? रिद्धि सीधी बैठो। Yes, there are 1,000 things that they know more than you and me. लेकिन हजारों चीजें हैं जो वो हमसे भी ज्यादा जानते हैं। हम भली ज्यादा पढ़ रहे हैं, हम उनसे ज्यादा बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम माँ और बाबा की बराबरी नहीं कर सकते। एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, हम अगर पूरे वर्ल्ड में जितनी भी किताबें हैं, जितना भी ज्ञान है, सब भी ले लेंगे, तो भी माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। माँ और बाबा को हमेशा ये अधिकार रहेगा कि वो हमें करेक्ट करे, वो हमारी गलतियां बताए। भले वो अपने से कम पढ़े लिखे रह जाएंगे। कई बच्चे होंगे, कई बच्चों के घर में होगा, दादा दादी 5वीं पास है, 10वीं पास है, पढ़े लिखे है ही नहीं, और पापा इतने पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब क्या पापा दादा दादी को डांट देंगे? नहीं डांटेंगे ना, उनका सम्मान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, और बड़ों को एक्सपीरियंस ज्यादा है। जितना दादाजी को एक्सपीरियंस है उतना पापा को नहीं है, जितना पापा को है उतना आपको नहीं है, जितना आपको है आपके छोटे भाई बहन को नहीं है। तो इससे एज का फर्क पड़ता है। राइट? राइट? एम आई राइट? यस। मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा। अच्छा, फिर सॉरी, भैया ने पूछा, नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई फॉल सिक टुडे? तुम क्या करोगे मुन्ना अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊं? किसने पूछा?
भैया ने किससे पूछा? मुन्ना से, कि अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना ने बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल, मैं बाबा को बताऊंगा और बाबा फटाफट हॉस्टल में आ जाएंगे। तो भैया आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, मैंने यही सोचा था कि तुम ऐसा ही करोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, लेकिन बाबा अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, पहले बाबा आएंगे और ये देखेंगे कि भैया तेरी तबीयत क्यों खराब हुई है, आखिर तेरे साथ क्या हुआ है। एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और वो डॉक्टर को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े हैं, उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। समझ में आया? यस, बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनको हमसे एक्सपीरियंस पूरी तरह से ज्यादा है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है हिंदी में अनुभव। क्या मतलब होता है? अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है। मुन्ना विथ टीयर्स इन हिज आईज, अब मुन्ना की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए आंखों में, टीयर्स। ठीक है, एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना, पेजेस फाड़ना, यहाँ टीयर का मतलब है आंसू, जो आंखों से बहता है पानी। ठीक है। भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ कर दीजिए, कान पकड़ के वो सॉरी बोल रहा है भैया को, आई एम सॉरी। वॉट यू से इज ट्रू, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, भैया भी मुन्ना को गले लगा लेते हैं एकदम से लविंगली, उसको हग करते हैं। आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट, तुम्हें क्या लगता है मुझे खेलना पसंद नहीं है? मुझे भी बहुत खेलने का मन करता है, पतंग उड़ाने का मन करता है। बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं भी खेलने लग जाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? मैं बड़ा भाई हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अगर मैं ही अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान कैसे रखूंगा? तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं खेलने नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं खेलने में मस्त हो जाऊंगा तो कौन देखेगा कि मुन्ना ने पढ़ाई करी कि नहीं, मुन्ना ने खाना खाया कि नहीं, मुन्ना ने लेसन याद किया कि नहीं। इसके लिए मुझे अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। फिर मुन्ना लास्ट में बोलता है आई लव यू भैया, है ना। हाँ, अब मुन्ना को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। इस स्टोरी में आपने ये ध्यान दिया एक चीज, कि भैया 3 बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, उसके बाद भी मुन्ना को डांट रहे हैं, पर मुन्ना ने उनसे एक भी बार बदतमीजी नहीं करी। अरे भैया बैठ जाओ, आप खुद तो फेल हो गए हो, मुझे समझा रहे हो, आप तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो। क्या एक भी बार मुन्ना ने भैया को ऐसा बोला? नहीं बोला। उसने पूरा रिस्पेक्ट किया भैया का। जब भैया उसको, भैया फेल होने के बाद भी बड़े हैं, वो उसको डांट रहे हैं, तो भी मुन्ना उनकी बातों को अच्छे से सीरियसली सिंसियरली सुन रहा है। राइट। उसने वापस उनको ये नहीं बोला अरे भैया आप चुपचाप बैठ जाओ, आप खुद तो फेल हो जाते हो, 2 साल से फेल हो रहे हो, मुझे समझा रहे हो, ऐसा कुछ भी उसने नहीं बोला। समझ में आई बात? ठीक है। चलिए अब फराज बताएंगे, फराज। यस मैम। इस स्टोरी में क्या होता है पूरा शुरू से थोड़ा बता दीजिए, ब्रीफ में, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। मैम मैंने पूरी पहले से तो अटेंड नहीं की थी मैम, मैंने अभी आधे 1 घंटे पहले ही अटेंड की थी मैम। ओके, स्विच ऑफ योर माइक। मोहित अमरावत यस मैम। बताइए। मैम पहले एक भैया था और एक मुन्ना था, और उसके बाद वो दोनों हॉस्टल में रहते थे, और उसके बाद उनके एग्जाम खत्म हुए, फिर वो भैया फेल हो गए। फिर भैया ने बोला आलस, मैं फिर से फेल हो गया। फिर मुन्ना ने बोला अच्छा हुआ मैं तो पास हो गया। फिर सीन 2 आए, उसमें वो फिर से पास हो गए, फिर से फेल हो गए। तो मुन्ना ने बोला मैं बहुत लकी हूँ जो मैं फेल नहीं हुआ। तो उसके बाद एक मुन्ना पतंग उड़ा रहा था, और उसकी पतंग कट गई, उसकी पतंग धागे से कट गई और उसका धागा कट गया, और वो
जैसे ही पतंग को लेने के लिए दौड़ा, जैसे ही वो उठा रहा था तो उसके सामने भैया आ गए और भैया ने बोला कि तुम मेरे से बस एक ही क्लास बड़े हो, एक ही क्लास नीचे हो, पर पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद उसने अपनी मम्मी पापा को एग्जाम्पल दिया, जैसे कि अगर मैं बीमार हो गया तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना ने बोला कि मैं तो अपने पापा को बताऊंगा, बोलूंगा कि भैया बीमार हो गए, फिर वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे और वो इलाज करेंगे। फिर उसके बाद भैया ने बोला मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और उसके बाद मुन्ना को समझ में आ चुका था और लास्ट में उसने बोला आई लव यू। Okay, Mohit, thank you. Anyone else from the girls side? Boys का हो गया, गर्ल्स में से कौन करना चाहता है, कौन बताना चाहता है? गर्ल्स में से, गर्ल्स में से, गर्ल्स में से अ, ज्यादा लोग मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं गर्ल्स में से। ओके आशी। यस मैम। पहले क्या होता है कि दो भाई होते हैं, एक भाई 5 इयर्स बड़ा होता है छोटे भाई से, वो दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं और क्या कहते हैं, भैया छोटे ब्रदर को समझाते रहते हैं कि पढ़ाई कितनी जरूरी है और तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। उसके बाद एग्जाम्स आते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं, तो भैया फेल हो जाते हैं और जो छोटा भाई है वो पास हो जाता है। तो भैया बोलते हैं कि अरे मैं फिर से फेल हो गया हूँ। फिर क्या कहते हैं कि मुन्ना बोलता है कि अरे वाह, अच्छा हुआ मैं पास हो गया। फिर बड़े भैया बोलते हैं कि इतना भी प्राउड मत करो, अभी तुम सिर्फ एक क्लास ही पास की हो और तुमको लगता है कि तुम समझदार हो और मैं स्टूपिड, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है, सीन 3 आता है और क्या कहते हैं, फिर से रिजल्ट आते हैं एग्जाम के बाद और फिर से भैया फेल हो जाते हैं और मुन्ना जोर से बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं लकी हूँ और मैं पास कर गया इजीली, बिना ज़्यादा पढ़ाई किए और बिना हार्ड वर्क किए। तो फिर क्या कहते हैं कि भैया बोलता है तुम मतलब वो कहते, मुन्ना बोलता है अब मैं खेलने जा सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि पतंग कट गई और मुन्ना ने देखा, तो मुन्ना गया उसको पकड़ने के लिए, तभी उसके सामने अचानक से उनके भैया आ जाते हैं। तो भैया ने जोर से हाथ पकड़ के मुन्ना का उसको डांटना शुरू कर देते हैं कि तुमको शर्म नहीं आती कि तुम एक क्लास में आ गए हो और अभी भी तुम साइड से आते हो पूरे दिन, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो फिर क्या कहते हैं कि भैया बोलते हैं कि तुम अब छोटी क्लास में नहीं रह गए हो, अब तुम 8th में आ गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हें समझ नहीं है। तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे सिर्फ 1 साल आगे हूँ, मैं अभी भी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। तो अब भैया उसके मम्मी पापा का एग्जाम्पल देता है कि मम्मी तो पढ़ी ही नहीं है और पापा तो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़े हैं। तो मुन्ना शॉक होके बोलता है क्या ये सच है? तो भैया बोलते हैं हाँ ये सच है, लेकिन माता पिता हमसे कितने सारी चीजें ज्यादा जानते हैं और हमें करेक्ट करने की मतलब करेक्ट करना उनका फर्ज है और वो हमें करेक्ट करते हैं।
और अगर और फिर भैया समझाते हैं कि अगर अभी मैं मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो तुम क्या करोगे। तो मुन्ना बोलता है कि मैं पापा को बुलाऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं पापा को बुलाऊंगा और पापा जल्दी से हॉस्टल आ जाएंगे। तो भैया बोलता है कि हाँ, मुझे यही आंसर एक्सपेक्ट था, मुझे यही उम्मीद थी कि तुम यही बोलोगे। तो फिर भैया बोलते हैं कि हाँ, मुझे यही उम्मीद थी। और फिर क्या कहते हैं कि मुन्ना ने मतलब भैया ने बोला कि देखो पापा हमसे कम पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनको पता है कि किस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। और फिर मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर भैया से बोलते हैं कि सॉरी भैया, तुम ठीक कह रहे हो। तो भैया बोलते हैं कि मुझे भी खेलना पसंद है, मुझे भी काइट उड़ाना पसंद है, लेकिन अगर मैं भी खेलने लग जाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और अगर मान लो कि मैं खेलने लग गया और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखा, तो क्या कहते हैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तो तुम क्या करोगे। तो फिर मुन्ना ने बोला हाँ भैया, आई लव यू भैया। ओके आशी, वेरी गुड, वेल एक्सप्लेन्ड बाय आशी। ठीक है, तो इस लेसन से हमें ये सीखने को मिला कि एक तो सबसे पहली बात कि हमें हमारे बड़ों को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। दूसरी बात, हमें हमेशा बड़ों को उनकी सही बातों को, उनकी अच्छी बातों को मानना चाहिए, उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, हमें अपनी गलती अगर हो तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अब आज का होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, ये जो लेसन है इसको पूरा सीन 1, 2, 3 पूरा बैठ के आपको अच्छे से रीडिंग करना है। In tomorrow's class, I will take up the new words and meanings and question answers. Is that clear, everyone? Okay. So that's all for the class today. Bye, ma'am. Thank you, ma'am, for teaching us. Bye, ma'am.